Okay, so now let's take next case. Impact of jet on series of hemispherical veins on the wheel. तो इससे पहले हमने किया प्लेट्स वर और वेन्स वर फ्लैट, ऐसे फ्लैट प्लेट था, अभी उसको हेमिस्फेरिकल कर दिया क्योंकि हमने देखा था इन केस ऑफ फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल प्लेट फोर्स ऑब्टेंड वाज मैक्सिमम, फोर्स ऑब्टेंड वाज मैक्सिमम। यहाँ ये टेंजेंशियली इन करता है और टेंजेंशियली ऐसे आउट करता है, ठीक है, फ्लूइड जेट। तो इस केस में हमें फोर्स मैक्सिमम मिलता है। तो जब फोर्स मैक्सिमम मिलता है तो इस पर टॉर्क भी वो मैक्सिमम लगाने की कोशिश करेगा, तो एफिशिएंसी भी मैक्सिमम की तरफ जाएगा, हमें वर्क आउटपुट भी मैक्सिमम मिलेगा। ओके, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वेन्स का शेप कैसा कर दिया गया, हेमीस्फेरिकल वेन्स कर दिया गया। फॉर द पॉइंट, तो यहां पर देखो अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेडी स्टेट होगा और मास फ्लो रेट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ नोजल, जेट का जो क्रॉस सेक्शन होगा दैट इज स्मॉल ए। यहां से जेट निकलेगा विद द वेलोसिटी v, एंड हेयर इट विल स्ट्राइक, here it will strike on the vein and here it will leave from the vein. Okay, vein will be moving, vein will be moving with velocity u. So let's say this is the velocity of vein at the midpoint of vein here, like this u. Okay, and this will be like mean radius, mean radius of the midpoint of the vein from the center of the wheel, and wheel will be rotating, let's say with some constant angular velocity omega, with some constant angular velocity omega, like this. Clear? This radius is r. Now if we go in the frame of reference of the vein, तो वेन को क्या रेस्ट में माना जाएगा? तो in the frame of reference of the vein or with respect to vein, vein will be assumed in the rest. So the jet will strike with relative velocity v minus u, and vein is smooth, so the relative velocity will remain same. It will also leave here with relative velocity v minus u. Horizontally right side it will go in, and horizontally left side it will go out. Got the point or not? So here again continuously plates are rotating, so jet के सामने continuously एक प्लेट हमेशा मौजूद रहेगा. So the complete mass flow rate will strike on the vein, it will be assumed, like our case number 7. So here you will write, here again for a very high, for a very high speed omega of the rotor, there is always a vein is present, a vein is present in front of jet, in front of jet. So complete mass flow rate m dot will be assumed striking on the veins as m dot will be equal to rho av. Yes or no?
m dot will be equal to rho a v like this. Now it is striking with some relative velocity, तो यहाँ लिखेंगे what it is striking with relative velocity Vr equals to v minus u like this. Okay, so what will be the force? तो यहाँ लिखेंगे for x direction, what will be the force? It will be m dot into delta change in the relative velocity in x direction. So it is rho av, complete mass is striking. Here you will write Vr, V relative in x direction initially minus V relative in x direction finally. Okay, so this will be the force by the jet on the plate. So what is the relative velocity initially? It is plus का v minus u minus plus का v minus u minus it will be minus of v minus u because it is going left side. So at the inlet velocity is v minus u, so it is plus side, and it is again v minus u, it is on minus side. तो वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस विल बी अल्टीमेटली प्लस, minus of minus will be ultimately plus. So rho a v into v minus u, this will be the value of force fx. क्लियर हुआ बात? तो यहां तक क्लियर होना चाहिए. 2 rho a v into v minus u. Now come to the y direction. For y direction, तो y डायरेक्शन में स्टार्टिंग में भी वेलोसिटी जीरो है और y डायरेक्शन में फाइनल भी वेलोसिटी जीरो है. तो रो ए वी v relative in y direction initially, v relative in y direction finally, दोनों जीरो है. तो जीरो माइनस जीरो विल बी एक्चुअली जीरो into rho ab will be total force zero. There is no y direction force on the vane. Got the point? अभी x डायरेक्शन फोर्स हुआ है तो क्या उसने वर्क डन भी कुछ कर पाया होगा क्या? तो वर्क डन पर सेकेंड निकालेंगे, कंटिन्यूस वर्क है, तो वर्क डन पर सेकेंड कैसे निकलेगा? एफ एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क पर सेकेंड के लिए टाइम से डिवाइड किया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका? प्लेट का वेन का वेलोसिटी होगा, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग दी वर्क ऑन दी प्लेट. तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑन दी प्लेट होगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2 रो ए वी इंटू यू वी माइनस यू, ये बन जाएगा आपका वर्क डन पर सेकेंड. 2 रो ए वी यू इंटू वी माइनस यू, दिस इज द वर्क डन पर सेकेंड. समझ पा रहे हैं? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स आर देयर. वर्क डन आ गया तो क्या एफिशिएंसी का बात करेंगे इस बार. देखते हैं कितना एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ होगा पिछले केस से. एफिशिएंसी इज गिवन बाय वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेट. जेट ने कितना वर्क किया ऑन दी प्लेट ही किया है, अपॉन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड गिवन टू दी जेट, और यू कैन से ऑफ दी जेट. जेट के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, तो वर्क डन तो कितना हो रहा है? रो ए वी यू वी माइनस यू लाइक दिस. कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? हाफ एम डॉट होगा रो ए वी इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे होगा. रो ए वी एंड रो ए वी
उड़ गया देखो बहुत दूर। 2 × 2 हो गया 4 इंटू यू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, इतना बनेगा कि नहीं बनेगा। सो दिस इज द एफिशिएंसी फॉर्मूला इन दिस केस। अभी इसको भी देखेंगे कि ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कितना जा सकता है। ये एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है। 4u v - u/v² इसका वैल्यू है, ठीक है ना। तो अभी यहां पर लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या कंडीशन है, कब जाकर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा। तो फिर से क्या करेंगे, एफिशिएंसी यू और वी दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। अगेन वी को फिक्स्ड करेंगे और वी क्या होगा, गिवन होगा, इसको चेंज नहीं करना है। और u क्या होगा, वेरिएबल होगा, या इसी को कंट्रोल करेंगे। u क्या होगा, वेरिएबल होगा और इसी को कंट्रोल करेंगे। सो एफिशिएंसी को u के साथ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ऐसे रख दिया जाएगा। मतलब d/du ऑफ कितना है एफिशिएंसी, 4u अपॉन v² इक्वल्स टू 0। इसमें 4/v² तो कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, v सॉरी ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, v × u - u², इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये 0 में चला जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा v - 2u इक्वल टू 0। फिर से क्या आ गया, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, फिर से वही मिला u = v/2, पिछले केस में भी यही मिला था। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, कंडीशन ऑफ और कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। जब u = v/2 होगा, मतलब प्लेट का वेलोसिटी जेट का वेलोसिटी का हाफ रखेंगे, तब हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलना चाहिए। तो इस बार मैक्सिमम एफिशिएंसी का वैल्यू भी निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी का वैल्यू भी निकाल देते हैं लगे हाथों। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का वैल्यू कितना होगा, ये है 4u v - u ऐसे, तो 4/v² तो ऐसे रखा, u की जगह रखा v/2 और अंदर भी u की जगह लिखा v/2। अभी इसको सॉल्व करो, अभी इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो आ जाएगा 2/v आउटसाइड, इनसाइड आ जाएगा v/2। सो एक्चुअली ये 1 हो गया। तो इट इज इक्वल टू एक्चुअली 100%, परसेंटेज में देखेंगे तो कितना होगा, 100% हो गया। 100% मैक्सिमम एफिशिएंसी इस तरीके से अचीव किया जा सकता है। बट क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई सिस्टम 100% एफिशिएंसी दे दे आपको। थियोरेटिकली मिल रहा है, प्रैक्टिकली नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत सारा एजम्पशन लिया हुआ ना। इसमें एजम्पशन क्या लिया हुआ है, स्मूथ वेन है, परफेक्टली हेमिस्फेरिकल है। क्या ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल और परफेक्टली हॉरिजॉन्टल निकल सकता है जेट, नहीं निकल सकता। स्मूथ भी नहीं होगा, फ्रिक्शन लगेगा, शेप परफेक्ट नहीं हो सकता है। पूरा पूरा मास फ्लो रेट अज्यूम किया है कि स्ट्राइक कर रहा है, पूरा पूरा स्ट्राइक नहीं करेगा। जैसे ये इधर स्ट्राइक कर रहा है, जैसे ही ये वाला वेन यहाँ रोटेट होके पहुंचेगा, वो थोड़ा थोड़ा जेट को क्या डिस्टर्ब करेगा, तो थोड़ा बहुत जेट बाहर भी फैलेगा। तो 100% मास जो हमने अज्यूम किया है कि कंप्लीट मास स्ट्राइक कर रहा है, ऐसा भी नहीं होगा।
तो ये 100% जो आ भी रहा है एफिशिएंसी, वो थियोरेटिकली आ रहा है। प्रैक्टिकली वी कैन नॉट अचीव 100% एफिशिएंसी ऑफ एनी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स। एनी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स 100% एफिशिएंसी तो निकल ही नहीं सकता है। एनर्जी लॉस होगा साउंड में, फ्रिक्शन में, गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो 100% एफिशिएंसी इज नॉट अचीवेबल, तो यहाँ पर लिख दो। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ लिख दो। बट practically it is not possible, practically it is not possible to achieve 100% efficiency here. We have taken many assumptions before solving as frictionless steady state okay etc. तो हमने सिस्टम को फ्रिक्शनलेस माना है, स्टडी स्टेट। क्या परफेक्ट स्टडी स्टेट कभी अचीव हो सकता है क्या? नहीं, मास फ्लो रेट भी फ्लक्चुएट करता रहता है, अप जाएगा थोड़ा डाउन जाएगा। 100% कांस्टेंट इसको भी नहीं मान सकते हैं। और फिर पूरा पूरा मास स्ट्राइक भी नहीं कर सकता है, पूरा पूरा 100% मास स्ट्राइक भी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं। चलो, दिस केस इज कंप्लीट।